students. Today we will talk about the topic dielectrics. What are dielectrics, type of dielectrics, and how this dielectric affect the capacitance of a conductor and how dielectric reduce the electric field value. So start the topic dielectrics. First of all, we see the definition of what are dielectrics. As we know, materials are classified into two categories. First category, metals or conductors which allow the flow of charges through them and conduct electricity. Second is insulator which do not allow the flow of charges through them and bad conductor of electricity. So dielectric भी ऐसी ही form है. Actually they are also insulators which do not allow the flow of charges through them, but they exert electrostatic force on each other. Or we can say when we place this dielectric in external electric field, then molecules get polarized by some localized displacements. तो उसके लिए सबसे पहले देखिए, these are the insulators which do not allow flow of charges through them, but exert electrostatic forces on one another when they are placed in an external electric field, and that word is very important, external electric field. Clear? Then we can say molecules get polarized. Okay, clear now? डाइलेक्ट्रिक भी एक तरह की इंसुलेटर ही होते हैं, लेकिन जब हम उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो क्या होगा? मॉलिक्यूल्स गेट लोकलाइज्ड बाय सम डिस्प्लेसमेंट, दे डेवलप सम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इन देम एंड स्टार्ट कंडक्टिंग. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स. नाउ नेक्स्ट इज एग्जांपल ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स. वुड, paper, glass, rubber, these all are fall under the category of dielectrics. Now next is how many types of dielectrics are there. We have already discussed about polar and non-polar molecules. तो उसी के बेसिस पे हम डिवाइड करेंगे अबाउट डाइलेक्ट्रिक्स, पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स. सो फर्स्ट इज पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड सेकेंड इज नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक. सो इट इज वेरी इजी टू डिफाइन पोलर डाइलेक्ट्रिक. जो आपके पोलर मॉलिक्यूल्स हैं हम उन्हीं को क्या कहेंगे? पोलर डाइलेक्ट्रिक्स. And those molecules are non-polar, they are non-polar dielectrics. तो first of all polar dielectric को हम कैसे define करेंगे? अगर आप कोई भी molecule लेते हैं तो उसके अंदर क्या होती है? Bonding होती है. If I say NaCl, H2O, HCl, NH3, तो ये सब molecules कैसे बने हुए हैं? Binding के थ्रू बने हुए हैं. पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इनके अंदर क्या होती है? बॉन्डिंग होती है. तो if I talk about polar dielectric, in this type of dielectric, the center of positive charge and center of negative charge do not coincide with each other. और पॉजिटिव चार्ज अपने प्लेस पे होगा, नेगेटिव चार्ज अपने प्लेस पे होगा और उनके बीच में कुछ सेपरेशन होगी. जब आपके दो चार्जेस के बीच में सेपरेशन होती है तो हमने उसका नाम क्या दिया था? यस, इलेक्ट्रिक डाइपोल. इफ इलेक्ट्रिक डाइपोल बना है तो क्या प्रोसेस करेगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आल्सो. सो दीज आर
पोलर डाइलेक्ट्रिक, तो हम इसको देख लेते हैं। द सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज डू नॉट कोइंसाइड। और इस टाइप के डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? परमानेंट डाइपोल मोमेंट। क्लियर? ऐसे डाइपोल का क्या होता है? परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, इनका खुद का डाइपोल मोमेंट होता है। एग्जाम्पल H2O। अगर आप वाटर का स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें क्या होता है? से दिस इज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड these are H. Now we assume that जो चार्ज होगा it is all charge concentrated at the center of this atom, और for this हाइड्रोजन हमने इसके सेंटर्स ले लिए हैं। अब इन दोनों का सेंटर हम अज्यूम करते हैं somewhere exist here. Now this is the negative charge center and that is positive charge center. Now some separation between positive and negative, it means it possesses some electric dipole moment, and in which direction? Negative to positive. This is negative charge, this is positive, so here electric dipole moment from negative to positive. तो ये आपको क्लियर है कि जब हम पोलर डाइलेक्ट्रिक की बात करेंगे तो उनके पास कुछ नेट डाइपोल मोमेंट होगा, बिकॉज देयर इज सम सेपरेशन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। नाउ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होगा? जिसमें सेंटर ऑफ, ठीक है, इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द डाइलेक्ट्रिक इन विच सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड negative charge coincide. Example CO2। हाँ जी, इसमें एक चीज और नोट करिए, यहाँ पे जो शेप होगी इन केस ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक दैट इज अनसिमेट्रिकल। इनकी शेप कैसी होगी? अनसिमेट्रिकल शेप। तो यहाँ पर जो सेंटर होगा दिस इज C एंड दिस O एंड दिस O। तो यहाँ पे जो सेंटर होगा पॉजिटिव एंड सेंटर ऑफ दिस नेगेटिव, वो क्या होते हैं? एक ही जगह फॉल करते हैं, कॉन्साइड करते हैं, तो उनके बीच में कोई भी स्पेस या कोई भी डिस्टेंस नहीं है। तो डिस्टेंस नहीं है तो क्या उनके पास डाइपोल मोमेंट होगा? नो, उनके पास कोई भी नहीं होगा, बिकॉज डाइपोल हम कब कहते हैं? जब दो चार्जेस के बीच में कुछ सेपरेशन हो। तो इन दिस केस नो डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होगा? इनका 0 होगा। और ये जो आपकी शेप बनेगी इन केस ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक दैट इज सिमेट्रिकल शेप। यहाँ पे कैसी शेप होगी? सिमेट्रिकल शेप। नाउ क्लियर द डेफिनेशन ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक आपको डिफाइन करना आना चाहिए, उनके एग्जाम्पल एंड अबाउट देयर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इन केस ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक देयर इज some net dipole moment, but in case of non-polar there is no dipole moment because center of positive and negative charge coincide each other. So that is the introduction about dielectrics. Now हम देखेंगे कि जब हम इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो इन दोनों के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। Now how does dielectric develop a net dipole moment when it is placed in external electric field? Now if we place, first of all we talk about non-polar dielectric and after that we discuss polar dielectric. Okay, now non-polar में आपने क्या देखा कि जो पॉजिटिव एंड जो नेगेटिव चार्ज हैं they are coincide each other like this, and in this case
there is separation between positive and negative charge. नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन है, इसलिए आप इसको पहले नेगेटिव लिखिए देन पॉजिटिव. ओके, सो in this way these molecules centers are there. In this case this is the condition when no electric field is present. यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, उस टाइम पे क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड ईच अदर. व्हेन वी अप्लाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया देन क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. Now this positive goes in the direction of electric field and negative charge this go away from the direction of electric field, and now this molecule gets stretched. अब इसकी जो शेप हो गई वो कैसी हो गई है, स्ट्रेच हो गई है. इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाइल नेगेटिव चार्ज गो अवे फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अब क्या कंडीशन हो गई है कि दोनों चार्जेस के बीच में कुछ सेपरेशन हो गई है. सेपरेशन होते ही क्या होगा, दे पोसेस नेट डाइपोल मोमेंट. अब हर एक मॉलिक्यूल पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की एप्लीकेशन से स्ट्रेचिंग होगी. एंड नाउ कंडीशन इज लाइक दैट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सो पॉजिटिव चार्ज इज हियर एंड नेगेटिव चार्ज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड. And all molecule get stretched. This is when electric field is applied and denote this by electric field. Okay. अब ये स्ट्रेचिंग कब तक होगी, अब बाहर से एक्सटर्नल फील्ड क्या लगा रहा है, इन चार्जेस के ऊपर फोर्स लगा रहा है. लेकिन जो ये चार्ज अंदर थे, पहले जो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो सेंटर्स थे, वो भी क्या करेंगे, अपनी एक रिस्टोरिंग फोर्स लगाएंगे जो इंटरनली लगता है. तो ये कब तक इनका एक्सचेंज होता रहेगा, बाहर से फील्ड क्या कर रहा है, इनको स्ट्रेच कर रहा है, अंदर से इनका रिस्टोरिंग फोर्स क्या कर रहा है, इनको वापस आने के लिए फोर्स लगाता है. तो जब तक ये और आपका अंदर वाला फोर्स बैलेंस नहीं हो जाता तब तक ये स्ट्रेचिंग कंटिन्यूस. सो दिस इज व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड. नाउ हियर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक develop its own electric dipole moment. Denoted by this P vector and direction this negative to positive. तो हर एक मॉलिक्यूल का क्या होगा, P होगा. सभी ऐड होने के बाद क्या देंगे, नेट डाइपोल मोमेंट. नेट डाइपोल मोमेंट develops due to individual molecule moments. So this is the effect of external electric field on non-polar dielectric. Now come to polar dielectric. अब polar dielectric के पास क्या है, पहले से ही अपना डाइपोल मोमेंट है उसके पास. बट जब हम इसके ऊपर फील्ड लगाएंगे, आपने एक्सटर्नल फील्ड दिया यहाँ पर, तो पहले ये जितने भी मॉलिक्यूल्स थे दे आर रेंडमली ओरिएंटेड. वो क्या थे, रेंडमली ओरिएंटेड थे, सबकी डायरेक्शन अलग अलग थी. तो क्या होगा, ये अपना मोमेंट देगा, ये अपना मोमेंट देगा, लेकिन किसी की डायरेक्शन ऐसे होगी, किसी की डायरेक्शन ऐसे होगी, एंड दिस ऑल द डायरेक्शन ऑफ P1, P2, and therefore they cancel out each other direction. So net dipole moment when electric field is not applied in case of polar dielectric, तो net dipole moment कितना हुआ, 0 हुआ. Net dipole moment equal to 0 when no
electric field is applied. Okay, now it is clear to you why here net moment is zero. मैंने बात की है यहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट की. अगर एक इंडिविजुअल का हम देखते हैं तो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है डाइपोल मोमेंट, बट ऑल द मॉलिक्यूल्स get randomly orientated, so as a whole net dipole moment equal to 0. They are randomly oriented. But when we apply external field, all these molecules get align themselves in the direction of electric field along electric field. तो जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया इनके ऊपर, इनको आप पहले रेंडमली लिख लीजिए. Like this. Now field direction, this one, this is positive, this is negative. In that direction क्या जाएगा? Positive sign. So what happen in case of polar dielectric? All molecules get aligned in the direction of electric field and possess net dipole moment. So these are the two cases, polar and non-polar. When electric field is applied, now what happened to non-polar? Firstly, net electric dipole moment is equal to 0 due to center of positive and negative charge coincide. But as soon as we apply external electric field, what happened? All the center of positive and negative charges get stretched, and now we have net dipole moment due to individual molecules moments. In case of polar dielectric, they have net dipole moment equal to 0 because these molecules are randomly orientated due to thermal energy. But when we applied external field, all the molecules align in the direction of electric field and now they possess net dipole moment. तो कंक्लूजन यहाँ से क्या निकला कि जब आप फील्ड लगाते हो तो पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक दोनों में ही नेट डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाता है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन ऑल दिस. नाउ वी इंट्रोड्यूस अ न्यू टर्म दैट इज पोलराइजेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक. व्हाट डू मीन बाय पोलराइजेशन? पोलराइजेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक. Both in case of polar and non-polar, there is induced net dipole moment in the presence of external electric field, and this is known as polarization of the dielectric. Polarization means पोल का इंड्यूस हो जाना. अब कितने पोल? 2 पोल, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? डाइपोल मोमेंट. जब दो पोल इंड्यूस हो गए, वन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज एंड सम डिस्टेंस बिटवीन देम, देन मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल गिव इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. तो जब आपने पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल फील्ड में रखा तो दोनों ही केस में क्या इंड्यूस हो गया? डाइपोल मोमेंट. इसी को हम क्या कहते हैं? इसे फिनोमेन को पोलराइजेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक. इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल P एंड ऑल्सो नोन एज पोलराइजेशन डेंसिटी. सो इट इज डिफाइंड एज induced dipole moment per unit
volume, and direction of P is same as that of electric field applied. So this is the polarization of the dielectric in case of polar and non-polar. And how can we define polarization density? It is induced dipole moment per unit volume. अब यहाँ पे वॉल्यूम की क्यों बात की है यहाँ पे? बिकॉज जब आप फील्ड लगाते हैं तो थ्रू आउट जितने भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उन सब में डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होगा, और जब सब मॉलिक्यूल्स में इंड्यूस होता है तो हम उनका एडिशन करके वेक्टर सम करके ही क्या निकालते हैं? नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक. Now we see how this polarization of the dielectric reduce the electric field. आपने डाइलेक्ट्रिक को पोलराइज कर दिया, नेट डाइपोल मोमेंट ले लिया, बट ये क्या इफेक्ट करता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया था उसकी वैल्यू को रिड्यूस कर देता है. तो देखिए ये कैसे रिड्यूस होगा. दिस इज रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड by polarization of dielectric. For that, first of all, consider this is external field. This is positive, positive, and here negative. Direction of electric field is this one. Now we introduce here a dielectric slab inside this field. So denote this external field by EO या original electric field. And here we introduce dielectric slab. Okay. अब देखिए जिससे आप फील्ड लगाते हो तो क्या होगा, इनके मॉलिक्यूल्स में क्या हो जाता है? इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट हो जाता है. तो यहाँ पर कैसे आप दिखाएंगे कि जो फील्ड है उसकी डायरेक्शन में क्या होगा? इलेक्ट्रिक पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों एग्जिस्ट करते हैं. पॉजिटिव की तरफ कौन जाएगा? नेगेटिव इंड्यूस होगा, लाइक दिस. अब यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव को ये रिपेल करके यहाँ भेज देगा, नेगेटिव को ये अट्रैक्ट करेगा. हियर पॉजिटिव तो यहाँ क्या होगा? नेगेटिव. यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ किसको कौन अट्रैक्ट करेगा? दिस पॉजिटिव. एंड सेम थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक. ओके, नाउ सी दिस इज EO ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड हेयर. ठीक है, जैसे आपने फील्ड लगाया डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या इंड्यूस हो गया? डाइपोल मोमेंट. जो सेंटर था पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस दे गेट स्ट्रेच्ड एंड नाउ द पोजीशन इज लाइक दैट कि जो पॉजिटिव है फील्ड का वहां पर सभी नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गए हैं, और जहां नेगेटिव चार्ज है वहां सभी पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गए हैं. सो इन दिस इज पॉजिटिव. In the interior of this dielectric this is negative. तो जितना यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ. सेम हियर दिस इज पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस, दिस इज नेगेटिव चार्ज, बट दिस नेगेटिव इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस पॉजिटिव in attraction with this negative. So this type of region is known as zero चार्ज डेंसिटी रीजन. मतलब इन द इंटीरियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक या वॉल्यूम के अंदर जो चार्जेस हैं जो इंड्यूस हुए, इफ दिस इज +10 दिस इज -10, कैंसल ईच अदर. फर्दर इफ दिस इज +10 दिस इज -10. बट जो कॉर्नर्स पे हैं जो इंड्यूस हुए, अगर मैं बोलती हूँ यहाँ पे कितने हैं बाउंड्री पर जो पॉजिटिव चार्जेस है दैट इज 10, लेकिन जो इंड्यूस हुए दैट इज 4,
बिकॉज इंड्यूस कम होंगे, ये डाइलेक्ट्रिक है। कंडक्टर होता तो यहाँ पर सेम अमाउंट में चार्ज इंड्यूस होता एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0। बट जब हम डाइलेक्ट्रिक की बात करते हैं तो यहाँ पर जो चार्जेस हैं वो फ्री नहीं होते, सिर्फ उनकी क्या होती है, मूवमेंट होती है। तो यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर कितने चार्ज टोटल बचे, दिस इज +10, दिस इज माइनस, सो टोटल चार्ज इज हियर 6। इन दिस केस दिस इज -10 एंड जो इंड्यूस हुआ दैट इज +4, सो चार्जेस कितना, -6। So these charges induced here at the surface of the dielectric and जो चार्ज डेंसिटी होगी वो कहाँ पर डेवलप हुई है, सरफेस पे, और जो सरफेस पे चार्ज डेंसिटी होती है हम उसको डिनोट करते हैं बाय सिग्मा। तो यहाँ पर कितना है, -σp एंड हियर इट इज +σp एंड दिस इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। सेकेंड थिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनल की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन यहाँ पर देखिए कैसे डायरेक्शन बनाई, दिस इज पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो जो कंप्लीट डायरेक्शन अगर हम देखते हैं तो कितनी होगी, दैट इज EI। EI मीन्स जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन। तो जितने आपने फील्ड लगाया, EI क्या करता है कि फील्ड को यूटिलाइज करता है टू इंड्यूस द चार्जेस। अब वो चार्जेस कहाँ है, एट द सरफेस, एंड चार्जेस जो सरफेस पे आते हैं हम उसको डिनोट करते हैं बाय सरफेस चार्ज डेंसिटी। सो इन दिस मैनर वी कैन से कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लगाया था, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज यूटिलाइज्ड टू इंड्यूस द चार्जेस ऑन द सरफेस। सो द reduction of this original field by how much value, this is E naught, say this is original electric field value, EI is induced electric field and direction क्या है induced electric field की, opposite to E naught। तो जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल देखा, इफ आपने 10 अप्लाई किया, 4 यूज हो गया चार्ज डेवलप होने में, नेट डाइपोल मोमेंट बनाने में। अब कितना फील्ड कितना बचा, E नॉट माइनस EI 10 एंड दिस इज -4, तो कितना बचा 6। अप्लाई कितना किया आपने 10, अब नेट रिड्यूस होने के बाद नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहा 6। तो इट मीन्स E इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड and E value is E naught minus EI, and that is very important conclusion कि जब आप डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हैं इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। अब कितनी वैल्यू से डिक्रीज होगी उसका मेजरमेंट कौन बताता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो नेक्स्ट इज डाइलेक्ट्रिक constant and this is represented by K. It is the ratio of original field E naught to reduced electric field, and it is denoted by E. So this is K equal to E naught by E, or in second form this is K is equal to E and E value is E naught minus EI. This is second form, and third form is E is equal to E naught by K. That give the measurement by how much amount the original electric field reduced, and that give the factor K how much amount reduced by this dielectric. तो in case of glass, in case of rubber, सबका केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग अमाउंट से डिक्रीज होगी।
that depends on dielectric constant value of that material. Now how can we define polarization density in the terms of sigma p, or this is induced? So when we apply this external field and that direction is this E naught, and the induced field in this direction, and net E is equal to E naught minus EI, and that is in the direction of this, and this E is equal to E naught minus EI, and finally direction of E in this direction. So this is the positive and negative charge shows this external field, this shows EI, and charges induced on the surface of dielectric, and this is minus QI charge induced here plus QI charge induced on surface, and having surface density minus sigma I and plus sigma I. Now polarization density is represented by capital P, and it shows induced dipole moment per unit volume. Right? So induced dipole moment, what is the formula for dipole moment? Charge into separation between them. Say separation between these two charges is small d, and Qi is the charge induced on either surface into d, and volume, say A is area of dielectric and d is distance between them, so AD shows volume of the dielectric. This d and this d cancel out, and this is Qi by A, and charge per unit area is known as surface charge density. So here polarization density is equal to induced surface charge density. So second definition is polarization density of the dielectric is equal to induced surface charge density of that dielectric. So this is very important result. And one more thing here, if we consider this electric field is very small, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल है, यूनिफॉर्म है, तो जितना आप फील्ड अप्लाई करते हो उतना ही पोलराइजेशन डाइलेक्ट्रिक में होता चला जाएगा. सो वी कैन से दिस पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड. आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते गए और डाइलेक्ट्रिक उतना ही पोलराइज्ड होता गया, उसके अंदर नेट डाइपोल मोमेंट आता गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी डेवलप ऑन द सरफेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक. Now one constant is there, that is chi e, and this chi e is electrical susceptibility. This chi e is electrical susceptibility. This is pronounced as chi. Now see, if polarization is directly proportional to E, that means अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आप स्मॉल वैल्यू एंड यूनिफॉर्म अप्लाई करते हैं, then polarization of the dielectric take place directly proportional to that field. Now if we eliminate this proportional sign, so mathematically a constant is here, and this constant is known as electrical susceptibility. And if we want to define this electrical susceptibility, then P by E, if I assume this electric field is equal to 1 unit, then electrical susceptibility is equal to P. So from here, this electrical susceptibility of dielectric measures dipole moment developed in it when a unit electric field is applied across it. कि जब आप एक यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं डाइलेक्ट्रिक पर, तो उसमें कितने अमाउंट से इंड्यूस डाइपोल मोमेंट हो जाता है. अगर वो ज्यादा होता है, इट मीन्स इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी डाइलेक्ट्रिक की अच्छी है.
तो वो कितनी अमाउंट से डेवलप होगा मोमेंट, वो कौन मेजरमेंट करता है? इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। बहुत छोटा सा टॉपिक है, मोस्टली टाइम बच्चे कंफ्यूज होते हैं अबाउट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो दोनों ही अलग अलग चीज है, वर्ड डाइलेक्ट्रिक दोनों के साथ अटैच है, बट इट डजंट मीन कि दोनों एक ही चीज है। सो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पहले देखिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है। द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन एग्जिस्ट इन ए डाइलेक्ट्रिक विदाउट कॉजिंग द ब्रेकडाउन ऑफ इट्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो इंसुलेशन होता है एयर का, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू आपको चाहिए? 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। जैसे ही वो वैल्यू अचीव कर लेता है इलेक्ट्रिक फील्ड, देन एयर क्या होती है? कंडक्ट करना शुरू कर देती है, चार्ज स्टार्ट फ्लोइंग। इंसुलेशन ब्रेक डाउन होने के बाद उसका जो बिहेवियर है वो कंडक्टर की तरह हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्यों पढ़ते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को? क्योंकि जैसे आप चार्ज देते हो कैपेसिटर को तो उसका पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है। पोटेंशियल इंक्रीज होने के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज हो जाता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू अचीव हो जाती है तो जो चार्ज आपने स्टोर किया है दे स्टार्ट लीकिंग इनटू द एयर और इनटू द मीडियम। तो वो चीज आपको स्टडी करनी पड़ती है कि आप कितना चार्ज एक कैपेसिटर के अंदर स्टोर कर सकते हो विदाउट ब्रेकिंग द इंसुलेशन ऑफ द मीडियम। तो सभी के लिए, सभी मीडियम के लिए, डाइलेक्ट्रिक के लिए ये वैल्यू अलग होती है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका क्या होता है? इट इज द रेशियो दैट इज E0/E। अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ज्यादा है, तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा? कम होगा। यस। और हम क्या चाहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो? रिड्यूस हो। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर रिड्यूस होगा तभी क्या कर सकते हैं हम उसके अंदर? और चार्ज स्टोर कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है सो दैट वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तक पहुंच गई, तो उसके बाद क्या हो जाएगा? इंसुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको दोनों ही प्रॉपर्टी को ध्यान रख के ही एक चार्ज स्टोर करना है कैपेसिटर के अंदर। इन केस ऑफ वैक्यूम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कांस्टेंट इज 1 एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज इनफाइनाइट। तो ये वैल्यू कम है, क्लियर? तो ये इनफाइनाइट है तो हम इसको नहीं लेते हैं। उसके बाद वाटर देखिए 81, ये वैल्यू ज्यादा है तो हम क्या करना चाहते हैं? ज्यादा चार्ज स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए K की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ आपको सेकेंड फैक्टर भी देखना है कि इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है? 0 है। तो इसका मतलब वाटर के अंदर तो चार्ज क्या हो जाएगा? लीक होना तभी स्टार्ट हो जाएगा, ब्रेकडाउन तभी हो जाएगा। उसके बाद हम ग्लास, माइका ये देखते हैं। तो जनरली वी यूज दिस ग्लास एंड माइका बिकॉज यहाँ पर वैल्यू देखिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज kV/mm। इसका मतलब एक मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करने में आपको कितना इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए? kV/mm। इट मीन्स वी कैन चूज माइका, ग्लास और पेपर और वी कैन से रबर ऑल्सो इन द प्लेट्स बिटवीन द कैपेसिटर। जो हम डाइलेक्ट्रिक फील करते हैं कैपेसिटर के अंदर, आप इनमें से चूज कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की वैल्यू बहुत ज्यादा है। इस 14 का मतलब क्या है? अगर आप 14.1 भी करते हैं तो इंसुलेशन विल ब्रेक डाउन। वो लास्ट वैल्यू जहां पर चार्ज लीक होना स्टार्ट हो जाएगा एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिव द रेशियो ऑफ दीज टू वैल्यूज। सो दिस इज नाउ क्लियर टू यू। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है? दोनों ही अलग अलग टर्म्स हैं। जब भी आप डिजाइन करते हैं कैपेसिटर को, उसके अंदर जब आप डाइलेक्ट्रिक फील करते हैं तो आपको इन फैक्टर्स का ध्यान रखना है। Now our next topic is capacitance of a parallel plate capacitor with a conducting slab, and it is very important topic. When we introduce a conducting slab inside a parallel plate capacitor, then what happened to its capacitance? How does its capacitance vary with a conducting slab? तो उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा, वो कैसे हम डिसाइड करेंगे? So first of all takes these two parallel plates, and as we know capacitor is having two plates, parallel long plates, on which
One have positive charge, other has negative charge. And distance between two plate is this d. Now we introduce a conducting slab inside this parallel plate capacitor whose thickness is small t. So write down consideration. Consider two parallel plates separated by small distance d and introduce a conducting slab of thickness small t between these plates, and condition is that d is greater than this t. Now electric field is in the direction from positive to negative. Now this electric field induced charges here negative and here positive inside the conducting slab. अगर हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कंडक्टर के लिए तो हम क्या देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये इसके अंदर अपोजिट डायरेक्शन में सेम स्ट्रेंथ का इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस कर देगा, सो दैट इनसाइड दिस कंडक्टिंग स्लैब इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0 एंड हियर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज E naught. So here the electric field vanishes because same charges are induced in same strength and direction of E is opposite to this E naught. Now what the capacitance of parallel plate capacitor? ये फॉर्मूला पहले पढ़ चुके हैं, दैट इज A epsilon naught by D, where A area of plates, epsilon naught is permittivity of medium and D is distance between plates, and electric field between these plate is between these plates, that is represented by E naught and that is equal to sigma by epsilon naught. ये आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, and that is equal to again Q upon A epsilon naught. That is the value of electric field inside the plates of capacitor. Third thing is we say potential difference between plates. अब पोटेंशियल कितना होगा? पोटेंशियल V is equal to E naught into D. Clear? Because this is positive and negative potential difference between these two plates, and that will depend on electric charge, and this is D distance, that is original. But when we introduce conducting slab, ये हमने पहले की original की बात, without introducing the conducting slab. But when we introduce, then when we introduce conducting slab between plates, then electric field inside plates equal to 0. अब मुझे बताइए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पहले कितना था? दिस वन, दिस कंप्लीट, यहाँ इस रीजन में क्या हो गया? 0. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ओनली इन द रीजन, दिस इज D एंड दिस इज T, तो एक्सट्रैक्ट करिए D माइनस T. अब इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इस रीजन में लाई करता है बिटवीन दिस कंडक्टिंग स्लैब एंड प्लेट, इन दिस रीजन ओनली. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड exist only in region D minus T. Now you have to calculate potential difference between these two plates due to this electric field. Okay, now this is plus Q charge here, here minus Q charge. Now potential difference between the plates,
this is represented by V and here E naught D minus T, जो new potential difference होगा between plates, because now electric field exists only this vacuum area, and this E naught value is sigma by epsilon naught, and this is D minus T. Further, this is represented by Q upon A D minus T, that is the new potential difference between the plates. Now we have to calculate capacitance. For capacitance, formula is C is equal to Q upon V. Put the value for this potential. This will cancel out. So capacitance is A epsilon naught D minus T. If we want to compare this new capacitance with conducting slab with previous one, for that multiply and divide this term by D. So this will A epsilon naught upon D, and this is D minus T, and this term is C naught D minus T. In this manner we can compare new capacitance with previous one, that is represented by C naught. So C is equal to C naught D minus T. So from this derivation we can conclude that when we introduce a conducting slab between two parallel plate capacitor, then the capacity of that parallel plate capacitor will increase. कैसे increase करती है? By D minus T times increase करेगी, और by this factor. So here capacitance of parallel plate capacitor will increase by D minus T factor. तो जब आपके पास वैल्यूज है D and T, put that all values, we can calculate that numerical value, that how many times the capacity will increase in case of conducting slab. So this is very important topic कि आप कैसे derivation को इसको extract करेंगे and find out the final result, that is equal to C is equal to C naught D minus T. Now we discuss next topic, capacitance of a parallel plate capacitor with a dielectric slab. Now instead of a conducting slab we use here dielectric slab. अब उसकी प्रॉपर्टी अलग होंगी. डाइलेक्ट्रिक आपने बहुत अच्छे से स्टडी कर लिया है कि जब हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं तो डाइलेक्ट्रिक में क्या चेंजेस आएंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी इंड्यूस होगी, एंड हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज एंड बाय हाउ मच अमाउंट. सो इन दिस केस दिस इज प्लस क्यू चार्ज ऑन दिस प्लेट and minus q charge on this plate. E naught is the direction of electric field. Now this T is thickness of dielectric slab. Write down all the consideration. Consider a dielectric slab of thickness T is introduced between पैरेलल प्लेट्स. अब आपको सेम वही स्टोरी याद रखनी है जो हमने डाइलेक्ट्रिक में की, कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अब जीरो नहीं होगा, बिकॉज एक्सटर्नल फील्ड जब आप लगाते हो तो वहां पर सिर्फ कुछ चार्ज ही क्या होते हैं, इंड्यूस होते हैं, उनकी स्मॉल मूवमेंट्स होती हैं. तो इंड्यूस जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू ई नोट से कम होगी, इक्वल नहीं होगी. इक्वल होती है कंडक्टर के केस में, तभी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, जीरो आता है. बट इन दिस केस ई आई इज इंड्यूस्ड फील्ड एंड दिस डायरेक्शन इज अपोजिट टू ई नोट. नाउ ई इज व्हाट, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एंड दिस वैल्यू इज ई नोट माइनस ई आई. दैट इज द वैल्यू ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक स्लैब. अब कितनी अमाउंट से डिक्रीज होता है वो आप कर चुके हैं, दैट इज ई नॉट बाय के. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से आप कंपेयर करते हैं. नाउ टू केसेस आर देयर. प्रीवियस केस बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, एंड सेकेंड केस हम स्टडी करते हैं जब अपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब यहाँ पर इंट्रोड्यूस की. तो ओरिजिनल सी नॉट जो कैपेसिटेंस होगा
दैट इज दिस वन। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट Q upon A epsilon naught and potential is V naught and its value is E naught into D। ये बात हमने प्रीवियस टॉपिक में भी की, ओरिजिनल कैपेसिटेंस, ओरिजिनल फील्ड एंड ओरिजिनल पोटेंशियल डिफरेंस। जब आपने यहाँ पर क्या इंट्रोड्यूस किया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, तो यहाँ पर होगा माइनस सिग्मा आई एंड हियर इज प्लस सिग्मा आई। दीज आर सरफेस चार्ज डेंसिटी इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। Now new potential difference between plates। अब यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, बिकॉज जो वैक्यूम वाला एरिया है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E नोट, लेकिन जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर है एरिया वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग है। तो पोटेंशियल क्या होता है, आपकी स्केलर क्वांटिटी, तो दोनों जगह अलग अलग पोटेंशियल है, वो आप कैलकुलेट करिए, देन उसका एल्जेब्रिक सम लीजिए। तो एज वी नो पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो न्यू जो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस आएगा दैट इज डिनोटेड बाय V। फर्स्ट पोटेंशियल आप देखिए इन द वैक्यूम रीजन, तो वैक्यूम रीजन में सेम है E नोट एंड किस एरिया में है E नोट, D माइनस T, जो ये रीजन आप देख रहे दिस वन। एंड इन द डाइलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज E is field, that is net field, and T is thickness, so that is net potential difference of this system। Now solve this, this is E naught D minus T। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, this is E and this is E naught। Now compare this E with E naught by the relation, as we know K is equal to E naught by E, or we can write this also E naught minus EI। तो आपको वैल्यू किसका चाहिए, E naught का, सॉरी E, so E is equal to E naught by K। We can put the value of E is E naught by K T। अब आप E naught को क्या ले सकते हैं, कॉमन, and here this is T by K, that is the value of potential difference। अब आपको निकालना क्या है, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस के लिए C is equal to Q upon V। अब Q upon V चाहिए तो इसको फर्दर हम E नोट को क्या लिख सकते हैं, दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट D minus T plus T by K, and in the terms of charge this is Q upon A epsilon naught D minus T plus T by K। Now put the values of V in this formula। Now the term C is equal to Q by V, and after putting this value, this is A epsilon naught and this is D minus T plus T by K। Q and Q cancel out and this is A epsilon naught D minus T plus T by K, and that is the final value of capacitance। In this case also we can compare old value of capacitance with new value। तो यहाँ पर भी आप सेम एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं कि जब आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करते हैं बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, देन कैपेसिटेंस विल राइज। सो इन बोथ केसेस कैपेसिटेंस विल राइज, एंड बाय हाउ मेनी फैक्टर वी कैन से, इफ आई टेक स्पेशल केस जो आपने यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक स्लैब T थिकनेस की इंट्रोड्यूस की है, तो आप दोनों प्लेट के बीच में इसको कंप्लीट फिल कर दीजिए। यहाँ पे जो स्पेस है दैट इज कंप्लीटली फिल्ड बाय दैट डाइलेक्ट्रिक। सो वी कैन से दैट दिस D इज इक्वल टू T, मतलब ये बीच वाला कंप्लीट रीजन किसने फिलअप कर दिया है, डाइलेक्ट्रिक ने कर दिया है। नाउ पुट दिस वैल्यू, दिस इज A epsilon naught, this is T minus T plus this is T by K, this will cancel out, clear। Now this is D minus D, this cancel out and this T को आपने D put कर देना है, so this will come out A epsilon naught, this is D and this K।
and we can compare this value with C naught. Now further, this is K is equal to K C naught and K equal to C by C naught. So this is an important result. Capacitance of new dielectric slab, when we introduce dielectric slab, then capacitance will increase by K times, and this K is known as dielectric constant. Now we can define this dielectric constant. This is capacitance of dielectric slab when we introduce dielectric slab between parallel plate to the capacitance when no dielectric slab between these plate. So it gives the ratio of these two capacitance without dielectric slab or with dielectric slab. So this chapter has important these two topics about dielectrics. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का आप कैसे डिफाइन करोगे, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, एंड कैपेसिटेंस के ऊपर क्या इफेक्ट होगा व्हेन वी इंट्रोड्यूस कंडक्टिंग स्लैब एंड डाइलेक्ट्रिक स्लैब, हाउ कैपेसिटेंस विल इफेक्टेड. सो रिवाइज दिस टॉपिक. थैंक यू.